Good afternoon, everyone. I would like to introduce our third speaker for our spectrum, that is virtual conclave at MIT SDE 2023, Mr. Devin Bhalla. Devin Bhalla, sir, is an award-winning brand marketing leader who is currently serving as a senior manager at B2B Unicorn, a TEDx speaker, an IM Merit Scholar, and a highly cited researcher. He has been an active content creator with 120K plus followers. He has conducted over 800 talks across the country and is passionate about fitness. He has been involved in numerous startups as an early stage investor. I welcome you, sir, to the spectrum of MIT SD 2023. The stage is all yours now. Thank you. Thank you so much for that introduction. Um, I think, first of all, since we are having this session after lunch, I would request people to actually have a glass of water. I would be keeping the session very engaging, like at least I'll attempt to do that. And this this particular topic that we'll be discussing about is going to be like very relevant for you as you progress, because your interviews and every single cue that you send out during the interview is being monitored, tracked, and is being, I would say, intentionally or unintentionally, is being viewed by the hiring manager and the recruiters, right? So I think without wasting more time, I would just get to the point here. Um, so we're going to talk about interview preparations and also how to go about addressing your body language, right? So there's going to be like a small section on body language, which obviously, had we done this in person, I would have invited a couple of volunteers and done that. But I would try to make the best use of the virtual platform and guide you through. I think before we begin the session, this is something that usually needs to be undertaken. Uh, as with respect to any session for that matter, whenever you begin that conversation, it's always great to realize that you need to understand yourself, accept that there is a scope of improvement, and then obviously work on it. This is always going to be how it works in corporate, whether you want to be an entrepreneur, in life in general, right? So whatever we discuss now, please ensure that if you're not taking notes, you can obviously take a photo, and because there will be like, I've done these sessions in different colleges, and people usually take photos so that they can always revisit this when their interview process is coming up, and then it really helps. So as it suits you, right? Just ensure that this session is being undertaken to make you maybe a 1% better professional or as a better individual, right? All of this is based on the learnings that I've had as an interviewee, like when I was appearing for interviews, and as an interviewer. So as I hire for my teams, right? There are a couple of things which people usually do not talk about when a recruiter or a hiring manager is out there to, uh, you know, रोल आउट अ जॉब. मतलब आपको जब जॉब चाहिए, तब जब एचआर एक जेडी फ्लोट करते हैं लिंक्डइन पे या naukri.com पे, आई एम जॉब्स पे, they look for certain very specific things, right? uh, Candidates can be in hundreds or thousands depending upon the type of the job, right? But then if everybody is applying, then only one or two will get that job. Not everybody is going to get that job, right? So this session is going to aim at getting you to be in those one or two people who are able to secure that job, right? Because this is a slightly lengthy process. I hope that most of you would have applied for jobs already, like maybe some WorkX. So I wanted to check with you that आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी पहले से वर्क एक्सपीरियंस है और आपने इंटरव्यूज दिए हुए हैं पहले. जस्ट बाय अ शो ऑफ हैंड्स. You using the, okay, got it.
Okay, so can we have one person who can tell that how was their interview experience like? Because obviously, next the one that I have to talk about, I would want that one person to be on, not be muted. Anyone can just, can we like unmute one of the participants? They can unmute. Okay, okay. Anyone just unmute yourself and please just let me know your name. Hi, myself Nikhil Gawande. Hi, Nikhil. Yes, am I audible? Yeah, yeah, you are. Yeah. So currently I'm working as a quality analyst in a IT sector in Pune. Okay. So So yes, how was your interview process like? So, so right, in starting from interview the process, very beginning. yes, sir. From beginning I will let you know. So can I speak in Hindi? I'm Yeah, more yeah. comfortable on Please that. feel free. Please feel free. सो बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस में ऐसा होता है कि जब आपकी डिग्री होती है एज अ फ्रेशर यू ट्राई टू यू ट्राई टू listed yourself in a various portals like Yeah. naukri.com या फिर आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हो. उसके बाद में फिर जो एचआर होते हैं तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचआर की भाई एक एक बंदे के पीछे लगने से अच्छा है किसी पोर्टल से ही उसका रिज्यूम या फिर उसकी प्रोफाइल चेक कर लो Hmm. और वहां से फिर उसको आप अप्रोच करते हो इंटरव्यू के लिए. Hmm. सो ये बेसिक प्रोसेस होता है. Hmm. सो इसमें जो हेल्पफुल रहता है आपकी आपने जो मीन्स कॉलेज में या फिर किसी भी कोर्सेज से जो भी पढ़ाई की उसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन वगैरह रहेगा तो इट शुड बी मोर हेल्प टू यू गेट दैट जॉब. Absolutely. Absolutely. एंड So, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिज्यूम में आप जो भी रिज्यूम में लिखते हो उतना नॉलेज आपको होना चाहिए और उसके बेसिस पे जो स्किल आपने एक्वायर किया हुआ है hmm. सो उसके बेसिस पे एचआर के आपके आपके साथ राउंड होता है. मीन्स बेसिकली Hmm. 3 राउंड्स होते हैं. पहला तो Yes. आपका टेक्निकल होता है. सेकंड जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे कंपनी पे जाने के बाद तो मैनेजरियल एक राउंड होता है. एंड Hmm. आफ्टर आफ्टर आपने दोनों राउंड क्लियर क्लियर कर दिए तो फिर आपका एक फाइनल राउंड होता है एचआर के साथ Hmm. जो कि Salary बेसिकली मेन होता negotiation. है. हाँ, पैसों के बारे में होता Hmm. है. सो हाँ. वो होने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाती है. लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना इज नॉट अ टफ जॉब. इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो लेकिन Hmm. इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में स्ट्रगल शुरू होता है जब आप किसी वो ऑर्गेनाइजेशन तो में होता ही है. एंटर होते हो. यस. सो वो that will सर्वाइवल always करना. be the case. यस. सर्वाइवल करना मीन्स आप अगर फ्रेशर हो तो बाकी के जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आप उनकी मेंटेलिटी के साथ मैच करना ये सब चीजें आपको मीन्स कंटिन्यूअसली प्रोसेस रहता है कि आप कभी मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो Hmm. लर्निंग कंटिन्यू प्रोसेस आप उसे छोड़ नहीं सकते हो. आपको अगर रेस में भागना है तो फिर वो हो जाता है. Very true. Very true. या So I think as you've यस. already mentioned, आपने बताया कि तीन राउंड्स होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो 3 की 5 और 7 और 11 भी हो सकते हैं. राइट. इट इज लाइकली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स. अगर एब्सोल्युटली एंड आल्सो द आप अगर टाइप ऑफ रोल जहां आप यस अप्लाई कर रहे हो. या अगर आपको अगर टेक्निकल में आपका एक राउंड हुआ है लेकिन उसमें आपका परफॉर्मेंस उतना अप टू मार्क नहीं है तो वो हम्म. टेक्निकल के 2 राउंड या 3 राउंड भी ले सकते हाँ, और ये डिपेंड उस पे एक और चीज पे भी करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हो गए. हैं. यस. मतलब अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर अच्छे लग रहे हैं सो देन दे विल हैव टू स्टार्ट यू यस. नो. यस. अगर अगर मास रिक्रूटमेंट चल रहा है और अगर उनके पास अगर मास रिक्रूटमेंट दस में इतना नहीं दस होता है, इतने राउंड्स नहीं होते हैं. मास रिक्रूटमेंट में पहले ही वो फिल्टरिंग कंडीशन ग्रुप डिस्कशंस या फिर आपका जो भी हाँ, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं उसमें फिल्टरिंग वो कर लेते हैं. हाँ, हाँ. ट्रू. लेकिन बेसिकली जैसे ही आप ये मास्टर वगैरह से या फिर अगर आप कैंपस से नहीं जाते हो और आप पर्सनली कहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हो तो मेजरली 3 राउंड्स आपके होते हैं. या फिर आपका अगर ओके ओके परफॉर्मेंस रहा तो एक फाइनल राउंड भी होता है जो कि क्रॉस वेरिफिकेशन होता है आपके वो स्किल के बारे में. ट्रू. ट्रू. यस. सो आई कैन टॉक अबाउट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. या. मेरा एक राउंड भी हुआ है फॉर अ वेरी सीनियर रोल. मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ गिवन कि हाँ,
आपको हमने ऑलरेडी देख लिया है लिंक्डइन पे, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू, सो वो एक तरीके का आइस ब्रेकर ही होता है कॉन्वर्सेशन की। हाँ, अब आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड जॉइन अस। सो इट्स मतलब कई बार तो वो फॉर्मेलिटी के लिए एक राउंड होता है, कई बार आई हैव हर्ड पीपल हु गो टू गूगल एंड मेटा, उनके 5 राउंड मिनिमम होते ही हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का रोल है, कितने किस डेजिग्नेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज कोई अगर एंट्री लेवल रोल होगा तो देन ऑब्वियसली दे वुड वांट समबडी हु इज मोर हैंड्स ऑन इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सम टेक्नोलॉजी। टेक वाला का कोई रोल है या यूआई यूएक्स का कोई रोल है, बट अगर कोई मिड लेवल पर जा रहा है तो उनके लिए हल्का सा टीम वाला भी एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है, कि कैन यू मैनेज वेंडर्स, क्या आप एजेंसी के साथ काम कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके कैसे हैं। जो लीडरशिप रोल होते हैं फिर उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी अकाउंट में लिया जाता है कि मतलब हाँ आपने इसी तरह का रोल पहले भी किया हुआ है, उसमें क्या चैलेंजेस थे, दे लुक एट मोर विजनरी काइंड ऑफ आंसर्स। तो वो वेरी करता है कि यस यस डिपेंडिंग यस, आई अपॉन आई 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 एग्री अबाउट दैट। मीन्स यस कैसा रहता है, रोल अगर आप डोमेन। एकदम फ्रेशर लेवल पे जाते हो तो आपको आपकी स्किल के लिए इंटरव्यू देना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप एब्सोल्युटली। मिड लेवल पे या फिर सीनियर लेवल पे हो, सो आपको उस तरीके से इंटरव्यू टैकल कर लेना मतलब पड़ता है, क्योंकि एब्सोल्युटली। मैनेजर लेवल पे अगर इंटरव्यू होते हैं तो वो आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपको वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको सूट होते हैं आपके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। सो हम्म एक राउंड भी होता है, एक या दो राउंड भी होते हैं, लेकिन फिर वो आप उस लेवल पे सीनियरिटी लेवल पे रहते हो तो बेसिक चीजें तो वो इंटरव्यू में नहीं होता है फिर। हम्म यस ट्रू, सो आई एग्री। आपने मतलब जस्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग इन 8 में से कौन से आपके स्किल्स टेस्ट हुए थे? मेरा तो पहले लीडरशिप पोटेंशियल टेस्ट हुआ था कि अगर आप हमारी कंपनी में अगर 3 साल काम करते हो तो आप मतलब लीडरशिप कर सकते हो या नहीं। हम्म सेकंड वन इज टीम स्किल, एक टीम के साथ अपने को काम करना पड़ता है। मीन्स ऐसा नहीं है आप किसी बंदे को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुझे काम नहीं आता है। बेसिकली टीम स्किल इज, अगर एक आपकी टीम है तो आपको एक टीम बॉन्डिंग के हिसाब से काम करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। एबिलिटी टू इनोवेट इट्स आल्सो वन स्किल, आपको हर टाइम पे नई चीजें जो है दूसरों से सीखने को मिलती है और वो सीखना पड़ता है। टाइम हाँ मैनेजमेंट में जो भी प्रोजेक्ट की डेडलाइंस होती है वो फॉलो करनी होती है और वो स्टिक रहती है, बिकॉज इट इज हैम्परिंग द बिजनेस। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा yes. तो नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक ये स्ट्रेटेजिकल विजनरी जो वाला रहता है। कि हाँ कितने टाइम तक आप हाँ, मतलब दे मीन्स वांट टू लुक एट। यस ये बेसिकली जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं वो हमको बताते हैं उनका क्या विजन है, कब तक कंप्लीट होगा क्या नहीं होगा वो सब। एंड एडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी तो है। यस, वो तो हमेशा ही रहेगी बिकॉज आपका रोल या भी इवॉल्व हो सकता है। ठीक है, सो वो तो दिस इज रखना है ये। रेलेवेंट फॉर एवरीबडी हुज ऑन दिस कॉल कि आई टुक वन एग्जांपल फ्रॉम निखिल एंड उनका इंटरव्यू प्रोसेस आपके सामने बताया बिकॉज ही इज डन इट। सो somebody फ्रॉम दिस ऑडियंस ओनली हैज अंडरटेकन दिस एंड ही कैन वाउच कि ये सब चीजें टेस्ट होती हैं। और आजकल डेटा आपका नंबर ड्रिवन सारा कॉन्वर्सेशन हो गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर आप ये सॉरी सीवी, रेज्यूमे तो मल्टी पेज होता है, सीवी इज जस्ट अ 2 पेजर डॉक्यूमेंट। तो यू कैन ऑब्वियसली हैव क्वेश्चंस, मतलब यू कैन बेसिकली फ्रेम समथिंग लाइक दिस कि मेरा इम्पैक्ट कैसा रहा है अभी तक। अगर मैं मार्केटिंग साइड पर हूँ तो मैं कितना ट्रैफिक आई वाज एबल टू जनरेट, हाउ मच बिजनेस आई वाज एबल टू जनरेट, राइट? सो दीज आर सम टैंजिबल नंबर्स दैट पीपल लुक्ड एट, और ये रेज्यूमे पे लिखी होनी चाहिए और आपके पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अप्रोच होनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, सो आई थिंक these are the couple of things that you will try and cover during the session. जो फर्स्ट पार्ट है 6C अप्रोच, इसके अंदर वो क्वालिटीज होंगी दैट यू नीड टू शोकेस इन द इंटरव्यू। ठीक है, सो वी विल, आप कहीं पर ही मुझे स्टॉप कर दीजिएगा इफ यू फील दैट यू वुड लाइक मी टू इलैबोरेट समथिंग ऑन दोज लाइंस। मतलब all of these will have 3 pointers, so 6C has 18 pointers in total, but एक ही स्लाइड पर नहीं है, अलग अलग स्लाइड्स पर हैं, सो यू कैन लेट मी नो। बाकी जो एक्चुअल discussion जो हमारा स्टार्ट होगा that will be from the star and impact builder, and obviously some hacks for you that you can try and implement. These are things that I've already implemented across workshops. So I would request if everybody सर can आप just आप हिंदी में बोलेंगे तो और बेटर रहेगा सर।
क्या चीज? आप सारी चीजें अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो और सही होगा, मतलब हम खुल के समझ पाएंगे सारी चीजें। अच्छा, sure. I would request. I think there's somebody who's. I would want them to be on mute. Please mute, guys. I can't see, but चलो ठीक है. So I think यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं 6C अप्रोच से. ठीक है. I would request कि आप team, can we have the person muted? Yes, sir. It's already done, sir. Okay. ठीक है. सो अभी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन अब से हिंदी में ही होगा. मतलब आई विल ट्राई टू थोड़ा थोड़ा बीच में टॉक इन इंग्लिश एज वेल. So we'll just have one volunteer again. Anybody who wants to add या कहीं पर कुछ डाउट हो, you can, आप हमेशा बीच में बोल सकते हो कि हाँ मुझे इस चीज के ऊपर थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, मुझे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो maybe we can discuss, or maybe we can keep the questions at the end. बाद में एक बार रिविजिट कर लेंगे. ठीक है. सो यहाँ से we'll start अब 6C अप्रोच के लिए. ठीक है. दैट इज कॉन्फिडेंस. आई थिंक ये तो आप लोगों को ऑलरेडी दिस इज विजिबल. जब whenever you जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो. ठीक है. सो एक देयर इज अ वे दैट यू प्रेजेंट योरसेल्फ कि आप योर प्रिम एंड प्रॉपर, आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आपका हैंडशेक होता है. अगर वर्चुअल इंटरव्यू है, सो देन हाउ मच ऑफ कॉन्वर्सेशन, आप कितना आराम से बात कर पा रहे हैं. सो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करता है आपका कॉन्फिडेंस, राइट? So if you want to take screenshots, you can. And there are some things जो कि एक टेक नोट वाला मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है. मतलब if you can, then try and realize that you are already working. मतलब अपने ड्रीम जॉब में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं. कोई भी एक अगर अपना अनम्यूट कर सकता है अपना माइक और वो बता सकता है कि उनके लिए ड्रीम जॉब क्या है, क्या सैलरी, क्या लोकेशन, किस तरह का जॉब प्रेफरेंस, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट. तो मे बी वन ऑफ यू कैन एक कोई अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है. सो उसी को एज एन एग्जांपल लेके ये 3 पॉइंट्स आई कैन एक्सप्लेन. So can you hear me? Am I audible? Yeah, I can. Yeah, Your this name is है? Diksha. Yeah, this is Diksha here. Hi, And Diksha. actually, I want to work in IT sector, not exactly the IT sector, in HR section. And my location will be Mumbai. Okay. This is your Yeah, dream job. yeah. HR, I love, being with people, understand people. I just love that management. Okay. So Diksha's dream job statement is, I want to work at a Fortune 500 IT firm as the head of HR. That's your dream job? Yeah, you can say that. Okay. So CHRO, so Chief Human Resource Officer at a Fortune 500 IT firm. True. Right? So that's your dream job. So Yes. आपने ये statement बोल के you've sent something out in the universe, which is basically आपका future self. मतलब आज से लेकर in the next few years आपका image, आपका mental image और आपका projection वो है अपने career को लेके. So the reason why, yeah, please go ahead. Yeah, I have to take actions according to that as well. Absolutely. So that's bang on point. Taking action. So जब भी आप interview prep start करें, please have a very clear image in mind that this is what I want out of this. So then you will have an end point. आपके दिमाग के अंदर एक last mile रहेगा कि ये मेरा final lap है जो मुझे ये चाहिए ही चाहिए. तो you will be very focused in terms of preparing for that interview and visualizing that, say for example आपको Infosys में CHRO का रोल चाहिए, तो आप उसी तरीके से अपना प्रोफाइल बिल्ड करोगे, उसी तरीके से अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करोगे, उसी तरीके से आप इंटरव्यू प्रोसेस में अपीयर होगे. ट्रू. राइट? सो यू वॉक द टॉक. मतलब आपको जो चाहिए आप उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सेल्फ एफर्मेशन वही होता है. सो से फॉर एग्जांपल मैंने खुद को ये
बिलीफ दिया हुआ है कि आई वांट दिस, राइट, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट, right? Or mental Yeah. image is always going to help. It's going to help you in getting the dream job, building your own business, having a great personal life, uh, having a great body. वो सब Yes, चीजें बहुत exactly. important होती Mental thing is important because if you are not mentally strong, you won't be able to get that confidence. हैं. Absolutely. So So I this won't is be able to, yeah, crack the interview. That's true. absolutely. So all of this is linked to confidence. So now the question is for the larger audience. जिस तरीके से मैंने ये एक सिंगल सी कॉन्फिडेंस वाला एक्सप्लेन करा है, ऐसे ही बाकी के पांच भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, और यू जस्ट वांट टू रीड एंड अब्सॉर्ब एंड देन आस्क क्वेश्चंस. So we want actually interactive sessions, so it will be really better. Perfect. That will be great. That's something that's my approach as well. ठीक है. Okay, so curious. So Diksha, would you like to volunteer for all the six C's? Yeah, no issues. Perfect. So let's have you as a volunteer. Then for the next section, I'll have one more volunteer. Right? So curious is मतलब आप कितना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और अपने एंड से उसकी तरफ मेहनत करना चाहते हैं टू इम्प्लीमेंट इट इन रियल लाइफ. ठीक है, मतलब ये चीज़ कैसे होगी, सो हाउ इज दिस डन. ठीक है. सो दीक्षा, what is that one thing professionally that you're very curious about or you would want to learn? Actually, I want to learn the new skills जो मुझे literally काम में आएंगे आगे भी, and I have to know exact path कि मुझे कैसे वहां तक पहुंचना है. End goal will be the same, but the journey will be different, right? So I'm Absolutely. curious about this कि Sure. exactly how I'm going to try all these things. Sure. So जैसे आपने पहले बताया कि आपका एंड पॉइंट है CHRO बनना एक फॉर्च्यून 500 आईटी कंपनी में. Yeah. ठीक है. नाउ यू हैव कम अप विद अ वेरी आई वुड से स्पेशल टर्म, दैट इज द जर्नी. From Yeah. now till that end point, what is the journey that I need to cover? So you need to be curious कि हाँ आज से एक साल बाद मुझे ये चाहिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, right? Yes. So you always have to be curious कि हाँ I want to start off maybe as a deputy manager of HR in this company. I will work here for 2-3 years. Then I will be able to add maybe HR Something. operations के अंदर I can pick up skills and HR BP. Next role के अंदर I can get something on the talent acquisition side. फिर analytics. ठीक है, मैं इन लोगों के साथ नेटवर्क करूंगी. यहाँ पर मतलब ये 3 कंपनी से था मुझे काम करना ताकि आई कैन लैंड अप इन दिस कंपनी, right? Yes. Or maybe I want to start off, say for example at Infosys, and build my career over the next 10, 15, 20 years, or tab then I will reach CHRO position. So there are different routes. What Yes. journey you want to undertake is what will determine your That future growth path, है ना? yeah, it will give me the exact results after some Absolutely. time. So इसके लिए obviously you have to be very bold, मतलब एकदम बिंदास रहना होता है. Exactly. Because अगर क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है सामने वाले को क्वेश्चन इतने मतलब they might not find it very interesting. ठीक है. Interesting, but that important for me. So I want Yes. to ask that. So you have to take that risk. ठीक है. You Yeah. have to be different and try something new. ठीक है. You may fail, you may succeed, but at least you have a learning. ठीक है. And then obviously अगर आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हो तो at least you know that you're on the right track, that at least you're thinking about it. Yeah, Most if people you don't have don't. a question, if you won't be curious about something, you won't be able to learn something new. Yes, and then That, you will be stagnant in your career. yeah, Right. there will be a saturation point and you will just stop there. Absolutely. ठीक है. Next is obviously communication. ठीक है. So basically how आप कितना आराम से बात कर सकते हैं. ठीक है. Are you able to आप अपने views express कर सकते हैं लोगों के साथ कि नहीं. ठीक है. इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें फैक्टर में ली जाती हैं. ठीक है. So that is obviously something around मैंने किस लहजे में या It is the tone and pitch of the voice, right? obviously so किस तरीके से आप किसी से बात कर रहे हैं. आर यू बीइंग रूड, आर यू मतलब आपका कोई टीम मेंबर आकर आप कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या आपके बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या कुछ भी कंसर्न हो गया कंपनी के अंदर,
आप जैसे HR रोल के अंदर यू वांट टू गेट इनटू, सो फॉर यू आपके पास आप ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर का जब रोल लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आकर आपसे डिस्कस करेंगे कि मुझे कंपनी छोड़नी है, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, मेरे साथ ये चैलेंज हो गया, मेरा परफॉर्मेंस इसलिए लो हो गया। तो आपका एज अ रोल क्या होगा, दैट यू हैव टू पैसिफाई देम, you have to Yeah, exactly. hear them out, then you first have to build, work on your hearing, then you have to work on your listening. दोनों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हियर मतलब हाँ मेरे को मैंने सुन ली, मैं ठीक बस है। सुन ली। लिसनिंग Yeah. मतलब यू आर ट्राइंग टू Understand his situation or अंडरस्टैंड her है। situation. एब्सोल्युटली। Yeah. तो यही लाइफ के अंदर भी इन जनरल होता ही है। से फॉर एग्जांपल आपका कुछ मिसमैच है, ठीक है, ड्यूरिंग अ इंटरव्यू कोई आपसे ये पूछ ले व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछते ही लोगों की बॉडी लैंग्वेज बिखर जाती है, Yes, exactly. राइट? Sometimes. मतलब नॉट समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये ऐसा क्वेश्चन है विच जिसमें से 100 में से 25 लोग तो वैसे ही उनके बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे ही बाहर हो जाएंगे बिना कुछ बोले। या उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली बताना क्या है। नहीं, वो हो सकता है कि शायद सच ना बोल रहे हो। या कुछ लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि उनमें कोई कमी है। वो ठीक है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। हाँ, That's a different kind of confidence. absolutely, but that is Yeah. overconfidence then most of the Yeah. time it backfires, right? आपका किस लहजे में आप बात कर रहे हो, कितना अंडरस्टैंडिंग होकर आप एक कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो किसी के साथ, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर द गोल्डन रूल इज, द स्टैंडर्ड गोल्डन रूल इज, प्लीज झूठ मत बोलिए, जो आप हैं वही दिखाइए, वही दिखाइए। राइट? Yeah. बिकॉज सामने वाले जो लोग हैं वो सालों से वो हायरिंग कर रहे हैं, Same, तो same दे विल thing स्पॉट here. यू, दे विल Yeah. स्पॉट योर इनऑथेंटिसिटी एंड फेकनेस, आपका झूठ पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। Yeah. और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक छोटा सा सेक्शन है विच आई हैव टेकन द लिबर्टी टू क्रिएट अ स्मॉल कैप्सूल फॉर यू गाइस, कि आप एक बार वो भी समझें, बिकॉज आप इस समय कैसे बैठे हुए हैं ये सेशन लेने के टाइम पर भी, मतलब एटलीस्ट मुझे तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आई कांट सी यू गाइस इन पर्सन, बट उससे आपको बहुत चीजें पता लग जाती हैं कि कोई इंसान क्या सोच रहा है, वो कितना यहाँ इन्वॉल्व है, और हो सकता है वो कोई चीज छुपा रहे हो, राइट? सो ये सब चीजें मिलाकर आपको ऑब्वियसली एक बेटर इंडिविजुअली बनाते हैं, ठीक है। क्रिएटिव, कोऑपरेटिव एंड चैंपियन इज समथिंग जो अब हम कवर करेंगे, वी आर हाफ वे थ्रू द 6C, ठीक है। क्रिएटिविटी इज समथिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एम्फोसिस है आजकल इंटरव्यूज में, जॉब्स में, टू बिल्ड लीडर्स, राइट? आप खुद का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्या कोई नई ज्योग्राफी है जहां से आप बिजनेस ला सकते हैं, ऐसी कोई चीज है, कोई टेक्नोलॉजी है दैट यू कैन इम्प्लीमेंट जिससे कि बिजनेस को प्रॉफिट हो, या उसका कॉस्ट कम हो, या कस्टमर के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर पाओ, या आप एम्प्लॉयज का रिटेंशन या कब को बढ़ा सको कंपनी में, कितने टाइम तक वो रह रहे हैं, या आप उनका रेजिग्नेशन कम करवा पाओ, वॉट एवर। मतलब आई एम गिविंग यू रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जो कि कंपनीज यूजली टेस्ट करते हैं। वो आपसे इंटरव्यू से पूछेंगे जरूर कि ऐसा कोई एग्जाम्पल कि आपको कोई सेटबैक मिला हो बट आप उससे इमर्ज कर पाए हो, कोई ऐसा इशू जो आपकी टीम में आया हो और आपने रिजॉल्व किया हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कि आपने इनिशिएटिव लिया, दे टॉक अबाउट यू, राइट? दे टॉक अबाउट योर एक्शंस। सो दीक्षा, इज देयर समथिंग दैट यू वुड कंसिडर कि आपने खुद से एक इनिशिएटिव लिया था एंड दैट हैज चेंज्ड यू फॉर द बेटर? Yeah, I have taken many initiatives, not actually in business world, but it's in different like kind of friend zone. It's a different story. ओके, सो ठीक है। सो आई थिंक मे बी दैट एग्जांपल इज समथिंग जो मैं अपने एंड से शेयर कर देता हूँ। मैंने एक बिजनेस लाइन स्क्रैच से बिल्ड करी थी। इट वाज इन द ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस फॉर इन्फो एज। सो इन्फो एज naukri.com का जो पेरेंट कंपनी है ना, उसमें आई वाज वर्किंग इन द एजुकेशन स्पेस, मतलब दैट वाज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। तो वो पूरा लॉन्च हुआ एंड वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए था हु वांटेड टू गो अब्रॉड, एंड इट रिसीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस। वो मेरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, एनपीडी,
मतलब इट्स अ वेरी हॉट कीवर्ड ऑन योर रेज्यूमे। अगर आपने कोई चीज खुद से बिल्ड करी है किसी कंपनी में और उसको एकदम स्क्रैच से लेकर उसको प्रॉफिट तक लेकर गए, इट्स अ वेरी बिग थिंग। पीपल वांट टू हायर सच पीपल, दैट इज द रियलिटी। ठीक है, सो ये क्या इंडिकेट करता है एक इंटरव्यू के अंदर, अगर आप ये बता रहे हो कि मैंने ये चीज खुद से बिल्ड करी, वो ये बताएंगे कि आप में इंटरेस्ट था कि आपने पहली बार तो प्रोजेक्ट लिया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के अंदर आपको 10 तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स थी। ठीक है, हो सकता है आप स्ट्रेस में हुए हो या बर्नआउट हुआ हो, तो आपने उसको मैनेज कैसे किया। ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कीवर्ड आपके इंटरव्यूअर को बहुत सारी चीजें इवेल्युएट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली, दिस विल, लास्ट तीन से तीनों वो उसमें यूज हो जाते हैं। यस, तो वो एक चीज हो गई कि मतलब एक स्टेटमेंट से 10 अलग अलग चीजें बाहर आ जाएंगी, ताकि इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू एक कम्युनिकी कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। जिस तरह से अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं। ठीक है, दे आपका कोई एजेंडा नहीं है उनको बुरा बनाने का या अच्छा बनाने का, ना उनका कोई एजेंडा है, बिकॉज वो आपको पहले से जानते नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉमन कॉन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग दो लोगों के बीच में। हो सकता है 3-4 लोग हों, डिपेंडिंग कि आप किस तरह के रोल के लिए एवेल्युएट किए जा रहे हैं। ठीक है, और जब भी कोई नया प्रोडक्ट या कोई कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपने इनिशिएटिव लिया था कुछ लॉन्च करने का या कुछ स्टार्ट करने का, वो ये भी बताएगा कि अगर आपने उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो दैट नीड्स टू बी समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द बिजनेस एंड फॉर योरसेल्फ, या दोनों में से किसी एक के लिए। अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा तो आपके लिए वैल्यूएबल क्या था, उसमें से जो आपको लर्निंग्स मिली, फिर आपने वो लर्निंग्स यूज करके आपने आगे कैसे यूज किया। दे वांट टू नो कि यू डिड नॉट टेक इट एज अ फेलियर, और आप आगे कैसे बढ़े। ठीक है, इन केस अगर आपका वो कोई भी चीज अगर वैसे पैन आउट नहीं हुई जैसे आपने सोची थी। ठीक है, Yeah, तो now companies are giving freedom for the creativity. यस, एब्सोल्युटली। फिर कॉर्पोरेट, आई थिंक ये तो दीक्षा, यू कैन लाइक, Yeah, exactly. I have taken initiative. So this is the cooperation actually, one type of. एब्सोल्युटली। सो कॉर्पोरेट वर्ड ही इसलिए कि मतलब अगर आप देखो कि बाकी लोगों के साथ आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो पीसफुली, As a team. ऑपरेट इन को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू कोऑपरेट, मतलब 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, हर एक इंसान अलग अलग होता है। इस सेशन में भी जो बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कोई थोड़े गर्म तबीयत के हों, हो सकता है कोई थोड़े हंसी मजाक करने वाले किस्म के इंसान हो, किसी को पार्टीज करना अच्छा लगता हो, किसी को नहीं जाना अच्छा लगता हो पार्टीज में। तो हर तरह के लोग होते हैं, बट इन लोगों के साथ जब आप काम करेंगे तो आप कैसे उनके बीच में एक सिंक बना सकते हैं। ठीक है, ताकि टीम को आप लेकर आगे बढ़ सकें। जो टीम को लेकर आगे बढ़ेगा वो लीडर होगा आगे जाकर। दीक्षा, इन योर केस यू विल Yeah, एंड अप that बिकमिंग द सीएचआरओ। I will end up with 10 or 15 members in my team. So I या, have to, find a route कि इनको सबको कैसे सिंक पे लाना है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या तो और मुझे टीम का एक्रोनिम ये है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ये हाँ, बहुत क्लीशेड है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये, बट वो रियलिटी है, बिकॉज सब लोग रियलिटी है. मिलकर एक या ही कॉमन गोल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत तरह के लोग होंगे तो फ्रिक्शन होता है, बहस होती है। ठीक है, कंप्लेन्स होती हैं। आप उन सबको कैसे टैकल करते हैं और उससे इमर्ज कैसे करते हैं एज अ टीम। ठीक है, आप कभी भी अगर सिर्फ प्रॉब्लम इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये चीज कैसे सॉल्व करी या आपको ये प्रॉब्लम आई थी, आपने उस पर क्या एक्शन लिया, तो आपको सोल्यूशन देना होता है जो आपने किया हो। ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट. रियल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम, किसी पीयर के साथ हो सकता है लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए या बहस हो जाए या डिसएग्रीमेंट हो जाए, कुछ भी, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आप उसमें से उस एपिसोड से आगे कैसे बढ़ेंगे। Yeah, ऐसा there तो will नहीं। be disagreements because team will be bigger, right? So there will यस, be disagreement on some points. People will be whining, and we have to just find out one simple path to reach to your goal. So एब्सोल्युटली, that's the main motto. यस।
And Yeah, this so is finding not solution with a bunch of people, it's really good. yes. So अभी तक I think किसी को अभी तक कोई doubts हैं with respect to the 5 C's that we have covered? Any doubts? चलो, I think किसी को अगर doubt है, they can always reach out to me one on one, LinkedIn, Instagram, wherever. ठीक है. So the last one is champion, right? So this is all about understanding. जैसे starting में मैंने बताया था to understand yourself, accept yourself and improve yourself. ये वही चीज है. So basically जैसे अभी दीक्षा wants to become a CHRO at a Fortune 500 IT MNC, right? Based out of Mumbai. So वो ड्रीम और ज्यादा डिटेल्ड हो सकती है if she says that I want to sit out of Sea Links or Juhu and need to have this kind of a flat or this kind of a house. वो जितना आप स्पेसिफिक्स जाएंगे उतना ज्यादा उसका रियलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है. So That's a road map कि मुझे कहाँ से कहाँ पे जाना है and absolutely, what specifically I want. absolutely. तो this is all about कि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछें, where do you see yourself in the next 5 years? जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, हाउ आर यू एबल टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जिसके अराउंड मैंने 6C पूरा कंसेप्चुअलाइज किया है, राइट? बिकॉज आपके सारे क्वेश्चंस इन 6 के अंदर ही फॉल करेंगे. ठीक है. सो Someone asked what is whining. व्हिच वन? Someone asked in message what is whining. वाइनिंग मतलब रोना धोना, कंप्लेन करना. उनको शिकायत रहती है कि अरे मेरे पैसे नहीं बढ़े, अरे मेरी इसके साथ बहस हो गई, अरे वो टीम वाले तो मेरी बात नहीं सुनते, वो लोग तो मेरे को इग्नोर करते हैं. ये वाइनिंग होता है. Whining, complaining about every small things. हाँ, Like कि बहुत गर्मी है, मेरे को ये सेशन नहीं लेना, मैंने अभी लंच किया था, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को क्यों इस सेशन में बिठाया. ये भी एक वाइनिंग का तरीका है. yeah, अगर exactly. सो दिस इज रियल अगर टाइम. उनको करना ही है तो वो करते ही है whining. हाँ, तो वो तो करेंगे, बट देन उनको आप एड्रेस कैसे करोगे, क्योंकि आपको तो हर तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा. Yeah, exactly. We have to find out some solutions about this as well. सो ये जो क्वेश्चन है चैंपियन वाला जो इससे निकलता है, वो ये है कि अगले 5 साल में या 10 साल में आपको कहाँ लग रहा है कि आप कहाँ तक आप क्या कर रहे होंगे. सो इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग. मतलब वो ये चेक करना चाहते हैं क्या आप अपने करियर को इतना सीरियसली लेते हैं कि आपने इवैल्यूएशन इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने खुद से ये कोशिश करी जानने की कि हाँ, अगर इफ आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर एक्स 2 साल, Hello. 4 साल, 6 साल, मेरा करियर कहाँ होगा, Sorry, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ. sorry for the interruption. Hello. या Hello. Anil this side. Could you please explain in English as well because I'm very weak in Hindi. Could you please explain in English as well so that it will be helpful for us? I am trying my level best. Yeah, actually, Okay, sure. some people are saying that they want in Hindi. Some are sending messages they want in English. So Ah, that's why. It would be great if you explain in both, if possible. That's Sure, why I'll do he that. actually. I'll take note of that. I will make an honest attempt to do Hindi and English translation for all of you. I think ये थोड़ा challenging होगा मेरे लिए, Sure. but Okay. No. I'll do my level best. So see, Okay. champion mindset is all about having that clarity of thought. Ki say for example, if you are at point A right now, in the next 5 or 10 years you need to reach a certain designation in a certain company at a certain role. So how aware are you about yourself, right? Do you have milestones in between that, okay, I need to navigate through point C, D, E and then reach point Z, right, or point Z, uh, while addressing and playing on your strengths and working on your weaknesses. अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि आप अगर इस समय Let me introduce. I will explain this. sure, that will be great. Okay. So actually championship ये है कि आपको believe होना चाहिए what exactly तो road map आपका क्या है. आपको exactly पता होना चाहिए कि आप
अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने वाले हैं या क्या क्या करना पड़ेगा. सो जब आप उस रोड से जाओगे तो आपको एग्जैक्टली वहां तक पहुंचोगे विथ आपको अपने वीकनेसेस पे भी काम करना है इन बिटवीन. मैं आई विल मैं थोड़ा उसको थोड़ा फिनेस कर देता हूँ या फॉर हिंदी पीपल, मेरा भी हिंदी उतना अच्छा स्पीकर्स. नहीं. हाँ, तो बेसिकली आपको अपने करियर के अंदर आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद कहाँ पर पहुंचना है, उसके बीच में आपको क्या क्या चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी. मतलब क्या आपके अंदर कमियां हैं, आप उस पर कैसे काम करेंगे. हो सकता है किसी को काफी गुस्सा आता हो, ठीक है, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट या अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे, बिहेवियर में कैसे चेंज लेकर आएंगे. ठीक है, ये चीजें अभी हो सकता है बात करने में ऐसे लगता है कि बहुत छोटी होती है, बट जब आप कंपनी में जाते हैं तो वो चीजें को का राई का पहाड़ बनने में देर नहीं लगता है. ठीक है, तो हो सकता है आपका एंगर इश्यूज हो, और आपको वो और आपके सीनियर्स को लगे कि आप प्रमोट नहीं किए जाने चाहिए हो, या हो सकता है कोई भी ऐसे कंसर्न्स हो जो कि एचआर आपके सामने ले आए कि आपने तो टाइम पे लॉग इन नहीं किया, आप पंक्चुअल नहीं हो, आपको लोगों के टाइम की कदर नहीं है. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ओवरऑल सक्सेस के लिए. ठीक है, so champion mindset is all about understanding yourself, accepting yourself and improving yourself. ठीक है, अब आई थिंक ये सेक्शन जो है स्टार शो, आई थिंक लेट्स pause for a minute. Right, so can the English speakers put that in the message box so that I can know, because I will need volunteers. English speakers, just ping it here कि आपको कौन सा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन बेटर रहेगा. अभी तक किसी को कोई डाउट है, पहले तो आप ये बता दो. आशना, इज द सेशन ऑन ट्रैक? Yes, sir. ओके, ठीक है. आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है, एंड दे आर वेरी इंटरैक्टिव आल्सो. ग्रेट. ठीक है. Yes, Zubair, interview is just selling. It is selling yourself, right? You want to sell yourself to get that job. That's exactly what interview is all about, and how well you can sell it. Yeah. ठीक है, understood. I think ठीक है. I need one volunteer. Diksha, would you like to be the continuous volunteer? Yeah, sure. I don't have any issues. Go ahead. Thank you so much. Most welcome. Most welcome. ठीक है, so let's start. अब स्टार शो ये मोस्ट कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, they utilize the star mechanism to understand कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे. सो स्टार शो इज अबाउट अ फ्रेमवर्क through which you need to showcase how you can solve a problem, right? So it's very simple. You can take a photo of this screen, right? It will really help. Okay, so it's all about, I will explain with the help of an example. Okay, uh, Diksha, if you won't mind if I ask you a question. Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Yeah, I'm here. Yeah, Go ahead. so I'll just ask you a question, then I'll try to do its Hindi and English translation. So, Sure. tell me about a situation or a problem which you faced at work, or maybe while working in a team, and how you resolved it. बेसिकली इश्यूज ये होते हैं कि सब एक पॉइंट पे नहीं होते हैं while working. Okay. ठीक है, so if I am having any group discussion
or any meeting, there will be a disagreement on the points. So we have to, conclude everything what exactly the means क्या क्या possibilities हो सकती है, and after that we have to resolve this. So this is a big challenge क्योंकि हर किसी का mind अलग तरीके से चलता है, and everyone will give you different examples or Understood. explanation about things. अंडरस्टूड. तो आपने इसको रिजॉल्व कैसे किया, मतलब आपने कोई चेंज लेकर आए सो दैट आपका टीम अचीव कर पाए चीजें बेटर? या एग्जैक्टली जो लोग डिसएग्रीमेंट पे होते हैं उनको उनका ही जो पॉइंट्स होता है उनको पूछना पड़ता है कि एग्जैक्टली आर यू श्योर दैट इट विल वर्क, बिकॉज इफ यू नो समथिंग, क्योंकि मेजोरिटी इन दिस कंसेप्ट मेजोरिटी विल विन, राइट? बिकॉज वन साइड, दैट इज वन वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम. या सो फर्स्ट तो मेजोरिटी विंस पे जाता है, एंड देन सेकंड हमें उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है, उनके भी ऑप्शंस जो है, जो उन्होंने ओपिनियंस बताए थे उन्हें भी एड्रेस करना पड़ता है. सो इट्स बेसिकली टफ. ठीक है, तो आई विल टेल यू एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था फॉर Amazon. तो व्हाई आई डिडंट जॉइन इज obviously because of XYZ reasons, but it was a great conversation, or all of that was, it was favorable for me to join, but because of COVID and all of that जो चल रहा था उस साल, I decided not to travel to another city. Giving you the context to tell you कि star approach is widely used in different companies, starting from startups till Fortune 500s, right? So star approach is all about, as you can see on the screen, situation, task, action, results. So how Diksha explained the response to my question, what is a challenge that she faced while working in a team and how she resolved it, right? So the situation was the current way of working of the team, right, which was not in sync because of difference of opinions. Task is to reach a joint conclusion. The action that she suggested was she discussed and troubleshooted with all the team members so that they can arrive at one solution. The result was it was a thumbs up from everyone and they were able to achieve success. अब इसको हिंदी में I'll try to explain. स्टार टेक्निक इज बेसिकली, सॉरी इसमें मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ. तो बेसिकली जब बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये एक फ्रेमवर्क फॉलो होता है, ठीक है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और बोलेंगे कि आप इस तरीके से एक्सप्लेन करो. सिचुएशन मतलब स्थिति क्या थी, टास्क आपने क्या किया, एक्शन इन द सेंस कि इसके अंदर आपने एग्जैक्टली क्या किया, ठीक है? टास्क तो ये होगा कि आपको क्या करना चाहिए, एक्शन वो होगा कि आपने क्या करा, और रिजल्ट मतलब एंड में आपका आउटकम क्या है या आपका निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है? सो कोई भी हायरिंग मैनेजर आपको कम से कम 3 से 5 सिचुएशंस देंगे डिपेंडिंग आपका किस तरह का रोल है, एंड देन उसके हिसाब से दे विल इवैल्यूएट यू कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं. प्लीज have a few use cases ready when you appear for this round, because the hiring manager will not give you more than 2 minutes to think through. इस राउंड के लिए प्लीज आप कम से कम पहले से तैयारी करके रखिए 3 4 5 तरह के क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, ठीक है? अगर आपको पहले से पता होगा कि ये 2-3 पॉइंटर हैं जो मुझे बोलने हैं तो आप उस पर कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, बट अगर उस समय सोचने बैठोगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो एटलीस्ट अपने रेज्यूमे को आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखना कहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आए थे, बिकॉज वो उसी से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? नाउ ऑब्वियसली द पी हैक्स और द पावर हैक्स, ये प्लीज टेक अ फोटो ऑफ दिस. Not many people are going to talk about it. I have been a part of numerous workshops when I was a student, and people were not discussing these things.
ठीक है. Only one training firm that I was associated with as a student, they did an excellent job. मैंने वो सीखा था एंड देन मैंने अपनी तरफ से भी कुछ चीजें इसमें ऐड करी हैं. ठीक है. सो प्लीज टेक अ फोटो ऑफ दिस बिकॉज ये आपको हर तरीके से कवर कर देगा इंटरव्यू प्रिपरेशन में. ठीक है. So ensure that you take a screenshot or take a photo of this because this is going to give you a well-rounded coverage for your interview preparation, right? Diksha, are you still there? Yeah, absolutely. Sure, sure. So I think we'll pick this one by one, but before we do that, any questions so far? Because I think it's great if I can keep on getting feedback in between. So your voice is not properly audible. Can you repeat that last line? Yeah, so I was saying that if anybody has any questions, they can like ping over here in the group and or just unmute themselves and let me know if they would want me to repeat anything. आप प्लीज वो मैसेज बॉक्स का प्लीज यूज करिए टू लेट मी नो अगर आपको अभी तक कहीं कोई डाउट है. ओके, सो मानसी हैज आस्क्ड हाउ टू टेल मी अबाउट योर वीकनेस. सो मानसी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, ठीक है. Anybody would like to take her question? हाँ सर, सेम क्वेश्चन मुझे भी था ये थोड़ा. Sure, ठीक है. So I think शायद एक से ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है तो I'll only take that question. ठीक है. So during interviews your hiring manager will try to put you on the spot. मतलब हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चन पूछ के कि आप आपका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है. ठीक है. तो मोस्ट पीपल आर लाइक कि दे से एनीथिंग. मतलब दिस इज नॉट अ रिहर्स्ड क्वेश्चन. पीपल डोंट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन बिकॉज अगर आपने कुछ पढ़ा भी है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और यू नो मैं आई मतलब मैं लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेता हूँ या भरोसा कर लेती हूँ. ठीक है. तो वो फिर आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ था. सो दे माइट ट्राई टू प्रोब आपके बारे में और थोड़ा जानने के लिए. हो सकता है थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करो इस तरह के क्वेश्चंस में. सो बेस्ट अप्रोच इज कि यू एक्सेप्ट पहले तो कि कोई वीकनेस है. से फॉर एग्जांपल कि आई वुड से दैट मुझे माइक्रो मैनेज करने की आदत हो जाती है. ठीक है. मतलब अगर मेरे को टीम मेंबर है तो मेरे को सब कुछ जानना है कि वो कब क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है. तो वो मेरा वीकनेस है. ठीक है. बट हाउ मैं इसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करूं दैट मैं कोशिश करता हूं कि मेरी टीम इज द बेस्ट. इसलिए अगर हर चीज मॉनिटर हो सके या मैं अगर उनको एक फेज वाइज मैनर में ट्रेन कर दूं कि ठीक है स्टार्टिंग के 3 महीने मैं आपके साथ एकदम बैठकर काम करवाऊंगा. उसके बाद आपको मैं अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप दे दूंगा. तो उससे क्या होगा कि मेरे को डेलीगेट करना आता है काम. ठीक है. मुझे मेरी टीम के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ. ठीक है. बाय गाइडिंग देम एंड मेंटरिंग देम. ठीक है. और मैंने इस फ्लॉ पे कैसे काम करा बाय टेकिंग अ प्रोजेक्ट. ठीक है. एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस थॉट प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग द रिजल्ट. तो इससे क्या हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने वीकनेस हाईलाइट करी. कॉन्वर्सेशन हो गई. साथ में पता लग गया कि मैं टीम को कैसे मैनेज कर रहा हूँ. ठीक है. इज दिस समथिंग दैट एड्रेसेस योर आंसर्स योर क्वेश्चन सॉरी. ठीक है. गॉट इट. ओ वाओ, ये तो बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चंस है ये तो. हाँ, ठीक है. शैल वी आशना, ये जो काफी सारे. ओके, वेलकम मानसी. हेलो. Yes, sir. ये जैसे क्वेश्चंस है यहाँ पर मतलब यू विल हैव टू टेल मी कि Okay. should we take these questions right now So or we should. can have it at the end. That's what I was going to say you in the between of the session. We can have the Q&A at the end. Is that okay with you? Okay, no, that's perfectly all right. I'll try to take 2 questions more and then we'll actually जो next वाला section है it's about power hacks. तो वो तो वैसे भी I have to just mention those because
मेरे को एक एक करके तो वैसे भी पॉइंट समझाना ही है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज रह जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ आई थिंक दिस इज 1 or 2 स्लाइड्स मोर, ठीक है। सो लेट मी पिक अप वन क्वेश्चन। धीरीश हैज मेंशन्ड कि क्या डिफरेंस है वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब इंटरव्यूज में, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम, सो वर्चुअल इंटरव्यू और इन पर्सन इंटरव्यू बेसिकली इज व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग या इज इट समथिंग एल्स? Yes, sir, this side, sir. Dhirish? Yes, there is. Am I Yeah, audible to you? yeah, you are. So I So wanted to know that, there will be like any written things or assessment or anything like that, or there is what is the difference Yeah, if the there is flap any lava, difference between them? bottom street, Bavi. sorry, there's I think somebody speaking in between. I couldn't hear you. Yeah, you were saying ki, please If repeat what yourself. Yes, I want to know if there is any difference, different kind of approaches are there in this for remote jobs or anything like that. Like they will see my skills and all. I mean, there must be some differences, right? There are, see, at the end of the day, if you have to apply for a job at any company, they will be evaluating you on some specific JD and the skills that you have, right? So your resume will be shortlisted at their end, right? Second, the interview process, whether it is Yes. virtual or in person, can play a significant role in your overall success. Say, for example, if you're talking to somebody like this, so I can't see you people, right? But my screen, my camera is on. So this can be a bone of contention between the interviewer and the interviewee. Most of the time, the interviewer might not have their camera on, so you might just be looking at the screen, but in person you have a confidence. That's where body language comes into the picture. Okay, so because if your interviewer is, having a smile, you have a handshake, so you feel more confident, you feel more in control of yourself. A virtual interview might unsettle a couple of people, right? So how the interview process pans out depends upon the medium, virtual or offline, right? Uh, with respect to, I think, as you mentioned, I think I take the liberty of talking about work from home kind of interviews. Again, it will be virtual, but they might invite you to meet with the team and see how it is positioned. A lot of the teams these days are working remotely, right? So they might be spread across the country, depending upon the type of role and the type of clients that they're dealing with. Work from office kind of job interviews would require you to be present in office at all times, so you might be required to meet a lot of people, right? So does that answer your question? Yes, absolutely. Thank you so Okay, much. ठीक है. I think Sanjay ji, I think negotiation skills is a very big topic. um, we'll pick this right at the end of the session. Um, Tejas is asking how to manage the situation when interviewer asks why we need to hire you when other people are having same knowledge and experience. So this is all about how you build your brand. So personal brand is something that really needs to stand out. Uh, I was asked this question once. So I said that what I bring to the table nobody else can. I am a content creator. I have an understanding of कि market में क्या चल रहा है. I have worked with X number of brands, and I also have won numerous industry awards, which obviously I think is a big plus depending upon the type of job that I'm applying for. Okay, so they were convinced with this kind of an answer. You don't have to oversell. इसमें आपको खुद को बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं बेचना है. आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वो जॉब के साथ सिंक में कैसे हैं. ठीक है. Usually people ये भी आंसर नहीं कर पाते, तो obviously your success of getting the job is higher. ठीक है. How to improve skills for interviews? Sagar, I think एटलीस्ट कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश तो आप थोड़ा बिल्ड करिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प डिपेंडिंग अपॉन द जॉब. मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कंपनीज के अंदर अगर हिंदी में ही होता है या आपका जो नेटिव टंग है, बट लीडरशिप टीम के लिए और क्लाइंट साइड पर इंग्लिश हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो, तो आई वुड रिकमेंड यू टू एटलीस्ट थोड़ा आप इंग्लिश में भी बात करिए.
it will really help. ठीक है, I think negotiation वाला we can pick at the end. ठीक है, any other questions? Should we choose only one decision? Yeah, I think this is a very interesting question that people are asking for negotiations. ठीक है, let me pick that up at the end of the session. ठीक है, let me सर हेलो, yeah. ड्यूरिंग इंटरव्यू कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूअर खुद अपने को बोलते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन है क्या, आप हमसे पूछ सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? मैं वो बोलते हैं कि आपको हमारे से कुछ यस। हाँ, सो ये क्वेश्चन पहली बात तो कितने लोगों को है? प्लीज रेज योर हैंड. ओके ठीक है. क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, क्या बोला इन्होंने, रिपीट करो एक बार. मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं मैं बोल देता हूँ. लास्ट वेट लेट मी एक्सप्लेन. आई थिंक देयर वाज समबडी हु हैड अ डाउट कि उनको समझ नहीं आया क्या पूछा आपने. ठीक है, तो इंटरव्यू का यूजुअली जब इंटरव्यू एंड होने वाला होता है तो एचआर या हायरिंग मैनेजर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको हमारे लिए कोई क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो मतलब आपसे वो अपने बारे में पूछते हैं कि आपको हमसे कुछ पूछना है. तो उसके अंदर ये एडवाइजेबल है और मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगा, प्लीज आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन. ठीक है, आप मतलब जो आपने क्वेश्चन ये पूछा है वो पावर हैक्स में मेरे को ऐड करना है. ठीक है, तो इट्स गुड कि हम लोग ये क्वेश्चन पहले ले रहे हैं. आप जब भी किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप कंपनी के बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट में है, लॉस में है, अभी न्यूज में क्या चर्चा हो रही है इस कंपनी के बारे में, व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट द फर्म इन द मीडिया, राइट. तो यू कैन सिंक कि अगर कंपनी का आगे ग्रोथ प्लान ऐसा है तो ये रोल कैसे ग्रो करेगा. ठीक है, सो दिस इज वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट यू शुड ऑलवेज आस्क कि इस रोल के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है. ठीक है, और ये कंपनी को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, तो व्हाट दैट विल डू इज कि आप कैसे अपने आप को उस कंपनी में देख रहे हैं वो आपने ऑलरेडी विजुअलाइज कर लिया है. ठीक है, तो वो हायरिंग मैनेजर के लिए एक बिग प्लस पॉइंट है कि आप ऑलरेडी उस तरह से सोच रहे हो कि आप कंपनी का पार्ट हो. तो they would have very less resistance coming from you when you join the company because you've already internalized that. आपने ऑलरेडी वो इमेजिन कर लिया है कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरा रोल पूरी कंपनी पे कैसे इम्पैक्ट ला सकता है. ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स दैट रियली हेल्प व्हेन, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपने क्वेश्चंस पूछने का उनसे. ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट इट इज एडवाइजेबल कि आप एक या दो क्वेश्चन ही पूछें. ठीक है, लेट्स मतलब यू कैन आस्क रेयर केस के अंदर थर्ड क्वेश्चन आल्सो, बट don't like drag the conversation beyond a point. ठीक है, cool. So I'll take the questions. You're welcome, Praveen. I'll take the questions now. So see power hacks, इसका आप प्लीज एक फोटो ले लीजिए, इट विल रियली हेल्प यू गाइस. जो भी अभी आई थिंक प्रवीण जी ने भी क्वेश्चन पूछा था, लाइक द क्वेश्चन दैट ही हैज जस्ट आस्क्ड, इट टॉक्स अबाउट योर इंटरेस्ट. आपका कितना इंटरेस्ट है उस कंपनी में, कि आपने टाइम निकालकर क्वेश्चन लिखे हैं या आपने सोचा है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं इंटरव्यू में. वो तभी हो सकता है अगर आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा हो. ठीक है, इंडस्ट्री मतलब आप आई नीड वन वॉलंटियर. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. This is Sapna. Your name please. My name is Sapna. सपना. सो हाय सपना. Hi. मैं सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, जो कि इसी के अराउंड ही हैं. ठीक है, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट चिल. ठीक है, आपने पहले इंटरव्यूज दिए? Yes, sir. I've given. ओके, any company that you appeared for that you would like to share? Once I had appeared for Accenture. Okay, let's take that as an example then. ठीक है. Okay. So Accenture, if you are preparing for an interview at Accenture,
there are certain things that need to be taken into account. ठीक है, these 6 things will basically sum up everything. ठीक है, कुछ मोस्टली हमने डिस्कस कर लिया है, एक चीज हमारी रह गई है जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, एक्सेंचर किस इंडस्ट्री में है, उसका अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्या जिक्र हुआ है, एक्सेंचर के कंपेटिटर्स कैसे अभी मार्केट में डील कर रहे हैं, प्रॉफिट में है, लॉस में है, आगे जाकर एक्सेंचर का शेयर प्राइस कैसे चेंज होगा. ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको इंटरव्यू से पहले रेडी करके रखनी चाहिए. आपकी जिस कंपनी में आप अप्लाई करो और वो कंपनी किसी इंडस्ट्री में लाया करती है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन. ठीक है, 1 पेजर आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये 3 चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं उनका. उससे क्या होगा कि जब आप अपने रोल के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, whenever they will ask कि if do you have any questions, this information will come in handy when you have a conversation with the interviewer or the hiring manager. ठीक है, so Sapna, when you appeared for the interview, did you do this research? Yes, I did. In fact, I knew it for which department they are trying to hire me, though they are into multiple, I mean, basically they're into software and IETS. Yes. So I come from a technical writing background. So Okay. they wanted, so I was given a week's time to understand their, product in the market and come up with a PowerPoint presentation as to what I understand about their company and what would be my role there. Understood. So they had given you time. Usually people, while they are appearing for an interview process, this is something that people miss out on. मतलब usually लोग ये नहीं करते हैं. So it's important कि आप कंपनी के बारे में सब कुछ जान लें. अभी न्यूज में गूगल, जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप द नेम ऑफ द कंपनी एंड गो ऑन द न्यूज टैब. तो आपको अभी हाल फिलहाल में उनका क्या प्रेस रिलीज आया है, लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो सब दिख जाएगा आपको. ठीक है, सो it's going to be very beneficial because you will be up to date with respect to the organization, right? Then jab Sapna, when you appeared for the interview, what were some of the things that you ensured that you were carrying with you, or how you dressed? आपका टाइम मैनेजमेंट कितनी जल्दी आप पहुंचे थे, टाइम पर पहुंचे थे या हल्का सा लेट हुए थे? कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? Yes. So I was on the interview day, I was in my formals, and I actually reached about 10 minutes earlier to the spot. And then I directly met the manager under whom I would be working. So I had to take him through the presentation that I had created. And he asked me, how did you come with this presentation? I mean, the product that I had mentioned and, the kind of detailing I had done, he wanted to know how exactly I came with that. Most of it I did Google research and then, I had prepared it. So that is how it went on. Excellent. So, interview wale din, this is like a piece of advice for everyone on the day of the interview. This is a piece of advice. Please dress in formals, wear clean shirt. For guys, obviously clean shirt and trousers. Uh, for women, obviously, they have multiple options. They can wear a sari suit, or they can also dress in a formal shirt and trousers. It's always good to wear neutral colors because you want to showcase um, clarity of thought, right? Darker colors you can, depending upon the season, right? Winter interviews, darker colors are preferred. Summer interviews, lighter colors are preferred, right? Preferably white on white shirt if that is available, right? Wear a watch if required. Be very punctual. Reach 10 to 15 minutes before. Like you should be in the interview room at least 10 minutes before. Try to avoid leaving or just to reach there on time, or it's not advisable to be late to your interviews because you might not be interviewed at all, right? And keep a few copies of the documents that you have to carry. Okay, your resume needs to be there, like at least 2-3 copies should be there, right? uh,
there are some questions that you need to prepare well in advance. मतलब पहले से आपको prepare करने होते हैं कुछ questions, ठीक है? जैसे अभी काफी सारे लोगों ने पूछा, tell me about yourself, greatest weakness, greatest strength, where do you see yourself in the next 5 years, 10 years, 15 years, whatever, ठीक है? So these questions need to be researched. आपको खुद से रिसर्च करना होता है और एक छोटा सा एक फॉर्मेट बनाना होता है कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे ये आंसर देना है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, उसके आगे आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको पता हो कि ये दिस इज द लाइन ऑफ थॉट, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज आई विल डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल, सो विल नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. Behavioral Q&A, primarily star technique, situation, task, action, result. They will ask you questions. आपके इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. प्लीज बी रेडी. हैव एटलीस्ट 4-5 टेम्पलेट्स इन प्लेस. एक ही बार की मेहनत है, बार बार वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट आंसर, टास्क और रिजल्ट रिमेन्स प्रीटी मच द सेम, ठीक है? क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर, जो कि आई थिंक प्रवीण जी ने भी पूछा था अभी कि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं क्या इंटरव्यू के लिए, तो यस डेफिनेटली आपको ये पूछना चाहिए कि ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप पूछ सकते हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर, ठीक है? कि ये जो रोल है इसका एक स्टैंडर्ड दिन कैसा लगेगा, राइट? इज इट, उससे आपको पता लग जाएगा कि रोल ऐसा कुछ है जो आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, मतलब वो है कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होगा, कैसे ग्रो होगा, कंपनी कैसे ग्रो हो रही है, मेरा रोल कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द फर्म, जो कि आपके रिसर्च से आप एक कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, ठीक है? और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मुझे बाद में 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर एमबीए करना है या मुझे एमएस करना है, तो क्या आपकी कंपनी मुझे सपोर्ट करेगी, या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं अब्रॉड जाकर कैन आई वर्क इन इन सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री, या मुझे इस पर्टिकुलर रोल में कितना एक्सपोजर मिल सकता है, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका एक्टिव इंटरेस्ट बताते हैं कंपनी के अंदर और रोल में. So do not miss out on the opportunity to ask a question from the interviewer, right? It signals a very strong candidature that yes, I am willing to sign up for this role, right? Before we start body language, just give me a moment. Yeah. So before we start body language, मुझे कुछ चीजें पूछनी है. आप में से कितने लोगों को exposure है about what body language is? Anybody, you can type it or you can raise your hand. आप में से कितने लोगों को आइडिया है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है? ओके, निखिल को है, रिया को है आइडिया, मधु, प्रभाकर, प्रशांत. गेस्टर और पोस्टर. हाँ, ठीक ठीक है. सो आई थिंक fair number of people understand. Excellent Radhika, eye contact, definitely, ठीक है? So I think we are pretty much spot on, ठीक है? I need one volunteer आप में से who can join in and lead the conversation with me for body language. That's great. Vrinda, Mamta and Manali, they are all on point. Hi, sir. I can try to volunteer. Sapna again. Hi Sapna, thank you for volunteering again. ठीक है. So I think I'll quickly jump on to the presentation, right? ये काफी self explanatory है, but again when we talk about interview preparation, लोग body language के बारे में बात नहीं करते हैं. एक statistic है which basically says कि आउट ऑफ हर 4 लोगों में से एक कैंडिडेट जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो इंटरव्यू प्रोसेस में बाहर अपने बॉडी लैंग्वेज की वजह से हो जाते हैं. 25% पीपल फेल because of their body language during interviews, right? So these are some of the classic uh, gestures and postures, I think, as people have mentioned already, that people showcase on a daily basis, right?
So as you've already mentioned, gestures that your body and your face communicate, जानते हुए या ना जानते हुए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि ये पता लगा आपको। चलो एक क्वेश्चन है, दिस इज अ क्विज। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी ने आपको झूठ बोला है? वो आँख से नीचे They'll देखना not होगा। maintain the eye बात नहीं contact. करेगा। आई थिंक बोथ सेड कि आई कांटेक्ट नहीं हुआ। या मोस्ट ऑफ द यस ओके, कि उन्होंने आई कांटेक्ट नहीं किया। बट देयर आर And they मल्टीपल also वेज थ्रू say, व्हिच यू कैन फाइंड। yeah, they also say they touch their nose or something, when they lie. या, यस, यस। So as you can say, as you can see, I think एटलीस्ट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग ये सब हो सकता है जो कि नीचे मैंने मेंशन किया है। मतलब यू कैन एक्चुअली स्पॉट इफ समबडी इज लाइंग बाय जस्ट मेकिंग अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। हो सकता है वो जल्दी बोलना शुरू कर दें, हो सकता है अपने चेहरे पर हाथ लगाएं, हो सकता है वो सोच सोच के बोल रहे हो बिकॉज उनको कहानी बनानी पड़ रही है, ठीक है। वो हो सकता है प्रॉपर जमीन की फ्लो तरफ नहीं रहेगा उसका, प्रॉपर फ्लो नहीं रहता बोलने का। क्या चीज? बोलने का जो फ्लो है वो फ्लो बिगड़ जाता है उसका, या तो बहुत स्लो बोलेगा हाँ, या वही तो वही वही एग्जैक्टली। या तो बहुत तेज बोलेंगे क्योंकि वो रिहर्स होता है आंसर, या हो सकता है वो सोच सोच कर बोले बिकॉज उनको कहानी बनानी पड़ी और आपने एकदम से उनसे कुछ पूछ लिया है, ठीक है। वो ये बहुत ज्यादा जो कि थोड़े मंजे हुए लोग होते हैं, सॉरी टू यूज द रॉन्ग वर्ड, जो कि माहिर होते हैं थोड़ा झूठ बोलने में, वो बहुत अच्छी कहानी बना लेंगे। मतलब इतना डिटेल डाल देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते कि झूठ था, ठीक है। रेस्टलेस हो जाएंगे, ठीक है। पैर पैर उनके पैरों में ऑब्वियसली वो दे विल ट्राई टू रिगल देयर टोज और दे विल गेट वेरी कॉन्शियस, ठीक है। हो सकता है ऐसी कोई चीज कवर कर रहे हो अपनी बॉडी में जो कि सच बताना चाह रहे हो बट ना बताना चाहते हो, ठीक है। आईज, माउथ, नोज, व्हाटएवर। क्योंकि जब आप अपने आप को डिफेंड करते हो तो आप यूजुअली यू ट्राई टू कवर दिस एरिया, यू ट्राई टू कवर दिस एरिया टिल द चेस्ट, राइट। और अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है झूठ बोलने में तो हो सकता है ये सब चीजें ना दिखे आपको। बट एक चीज है जो मैंने रेड में हाईलाइट करी है विच आर कॉल्ड माइक्रो एक्सप्रेशंस। अगर आपसे कोई पूछे कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट फ्राइडे। मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, ठीक है। दो लोग थे, एक को बुलाया स्टेज पर क्लासरूम में, और दूसरी जो थी रितिका, उनको मैंने बोला कि आप क्लास के बाहर चले जाओ। और दोनों का टेस्ट आइसोलेशन में हुआ था ताकि मैं कंट्रास्ट एक्सप्लेन कर सकूं क्लास को कि जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होता है और जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। और वो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल था जो इन पर्सन हुआ था। सो माइक्रो एक्सप्रेशन, जब मैंने लड़के से पूछा दिव्यांश से कि आप, वो एक स्टूडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर्स का स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दूसरी थी लड़की रितिका। तो दिव्यांश से जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि कहता कि मेरी ग्रेटेस्ट वीकनेस है कि मैं लोगों पे भरोसा जल्दी कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली उसकी आंखें ड्रूपी हो गई और हल्का सा पानी आ गया, ठीक है। तो वो एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट था बिकॉज वो थोड़ा मैंने बोला भी था कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन था वो, बट ही गॉट अ लिटिल सेंटिमेंटल व्हेन ही गेव दैट आंसर। तो ही वाज, ये सारी चीजें ही वाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रही थी कि ही वाज feeling restless, he was feeling cornered, he was feeling as if he's been put on the spot, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा था व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, और माइक्रो एक्सप्रेशन के अंदर साफ पता लग रहा था कि उसके चेहरे में मतलब आईज के अंदर ये वाले पोर्शन के अंदर देयर वाज अ सडन मूवमेंट जो कि बाद में फिर डाई आउट हो गई, ठीक है। ही गॉट इमोशनल बट देन ही पेपर्ड सर ऑफ, मैं आपको ठीक है। एक इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा। हेलो, हाँ जी, बोलिए। जैसे ये क्वेश्चंस अपने को इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज योर वीकनेस, और एट दैट टाइम हमें नहीं, मतलब याद नहीं आता, या फिर थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं हमारी कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन हमको नहीं याद नहीं भी तो नहीं आता है। नहीं, तो
वही चीज है। सो आप अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप दो वीकनेस एटलीस्ट अपनी आइडेंटिफाई करके रखें। और जैसे कि मैंने बोला कि मतलब मेरे को माइक्रो मैनेज करने की आदत है, तो इट्स अ वीकनेस फॉर सम हायरिंग मैनेजर्स, फॉर अदर्स इट माइट बी अ स्ट्रेंथ। तो आप ऐसी कोई वीकनेस आइडेंटिफाई करें जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ स्ट्रेंथ और एज अ वीकनेस। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन वेरी क्लियर एग्जांपल। आप ये बोलो कि मतलब आई एम ऑनेस्ट टू माय वर्क, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। बट अगर आप इसको वीकनेस की तरह प्रोजेक्ट करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि आई टेंड टू ट्रस्ट पीपल इजिली, है ना, बिकॉज यू माइट बी सेइंग कि आप खुद सच्चे हो, बट हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको सच ना बोल रहा हो। तो ये अब आपका वीकनेस हो गया, क्योंकि आप गलिबल हो गए। गलिबल इज द वर्ड, ठीक है। यू डोंट यूज द वर्ड दैट यू गलिबल, ठीक है, वो बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। जस्ट से दैट आई टेंड टू ट्रस्ट पीपल रिलेटिवली इजिली, रिलेटिवली वर्ड ऐड कर देना बस, ठीक है। तो एंड देन हाउ आर यू एड्रेसिंग दैट कि आप लोगों पे जल्दी भरोसा कैसे ना कर पाओ आगे। तो आप ये बोल सकते हो कि आई टेक माई टाइम टू असेस द पर्सन एंड द सिचुएशन एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। आपने एक सेंटेंस और बोला और आपका वीकनेस कवर हो गया। और आपने यस ये यस बोल दिया दैट यू आर वर्किंग ऑन इट, मतलब कि यू आर पुटिंग दैट एफर्ट टू bridge that gap between you as you're right now and a better version which is at the end of this tunnel of working on yourself, ठीक है। प्लीज शोकेस योर सेल्फ। अगर आपका कोई ऐसा वीकनेस है जो आप पूरे तरीके से एड्रेस नहीं कर पाएंगे, प्लीज शोकेस दैट यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, और आप उस पर क्या मेहनत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो जब मैंने बोला आई टेक माई टाइम टू असेस द पर्सन एंड द सिचुएशन, ठीक है, मतलब आप इम्पल्सिवली एक्ट नहीं कर रहे हो, ना जल्दी ट्रस्ट कर रहे हो, आप यू वेट एंड वॉच एंड देन यू प्लेस योर बेट, ठीक है। इट्स अ वेरी वाइज मैन्स आंसर एंड करेक्ट नोबडी विल करेक्ट सर। और उस पे क्योंकि हमारा जो आंसर होता है, फिर इंटरव्यूअर का उस पे क्वेश्चन होता है कि ठीक है आपका ये वीकनेस है, तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि ये आपका वीकनेस है। तो ये भी चीज हाँ हाँ, फिर क्रिएट कर लेती है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है उसमें। नहीं नहीं, आप बस ये बोल देना जब भी आपसे कोई पूछे कि ये आपका वीकनेस क्यों है, तो जस्ट से कि माय लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव बीन सच पर्सनली एंड प्रोफेशनली दैट आई हैव टेंडेड टू ट्रस्ट पीपल इजीली, बट आई हैव लर्नड माय लेसन्स, ठीक है। इससे ज्यादा कोई प्रोब नहीं करेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि हाँ आपकी मासी के लड़के के साथ आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था, इतना कोई डिटेल में नहीं जाएगा, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, करेक्ट ठीक है। करेक्ट। यू जस्ट नीड टू गार्ड योर फ्रंट्स, ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, ठीक है, हाँ ऑल पॉसिबल, ठीक है। नाउ एक और चीज थी विच आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट, दैट वाज पैरा लैंग्वेज। मतलब आपका जो भी पोर्शन यहाँ पर, हाथ पैर बॉडी, all of that is body language. When you talk about the way you speak, the speed at which you speak, ठीक है, कितनी आहें भर रहे हैं आप, ठीक है, कितनी जल्दी बोल रहे हैं, और किस इंटेंसिटी पे बोल रहे हैं, मॉड्यूलेशन क्या है, वो सब पैरा लैंग्वेज होता है। पैरा लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये पूरा बॉडी लैंग्वेज ही है, बस एक छोटा सा सेक्शन बॉडी लैंग्वेज को पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये कुछ चीजें हैं विच विल रियली हेल्प। मतलब आप पता लगा सकते हो कि इंटरव्यू के अंदर आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। लेट मी एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। प्लीज इंश्योर कि पॉजिटिव वाले आप करें और नेगेटिव वाले आप ना करें। प्लीज चेहरे पे हाथ मत लगाइएगा जब आपका इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज पहले मुंह धो के जाइएगा ताकि आपको इरिटेशन ना हो, ठीक है। डू नॉट डू एनीथिंग, प्लीज डोंट सिट लाइक दिस इन द इंटरव्यू with your hands crossed or with your legs crossed. That means मैं इंटरव्यूअर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, वो कुछ भी बोले मेरे को उसको नहीं सुनना है। whenever your body is crossed, that means you're not interested, ठीक है। और वर्स कि आप अग्री ही नहीं कर रहे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। ensure that you sit properly, your palms are always on the desk, maybe like this, or you're sitting like this is a power mudra, ठीक है। try to sit like this if you can, ठीक है। मतलब your toe, your finger should be in sync, ठीक है।
कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एकदम आपको कोई फैंसी सा कोई पोज बना के बैठना है वहां पे। जस्ट बी हु यू आर, जस्ट इंश्योर कि नेगेटिव वाली चीजें आप ना कर रहे हो, ठीक है? ओके, आई थिंक वी हैव pretty much completed the entire session on time. ये सिर्फ these are some suggestions for you in with respect to कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन please please wear formals. I've already told you what type of formals. पंचुअल रहिए, प्लीज झूठ मत बोलिए कुछ भी वहां पे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता देगी। एकदम कर्टियस होके इज्जत से बात करनी है सामने वाले से। ऐसे नहीं दिखाना कि मेरे को ज्यादा आता है उससे, या यू नो आई एम समबडी who's arrived in life and I don't consider this hiring manager worthy of taking my interview. मतलब मैंने कुछ केस देखे हैं when people are overconfident they try to belittle the other person, सामने वाले बंदे को नीचे भी दिखाया था इंटरव्यू में। तो वो चीजें नहीं करनी। अपने टाइम का और सामने वाले बंदे के टाइम का और एफर्ट का प्लीज बी माइंडफुल, ठीक है? और प्लीज टेक स्पेयर कॉपीज, टेक सम एक्स्ट्रा राइटिंग पैड मटेरियल और मे बी अ पेन, ठीक है? सो दैट अगर वो कुछ डिस्कस हो रहा हो या कोई गेस्टिमेट का प्रिपरेशन हो रहा हो या कोई टेक्निकल इंटरव्यू, तो एटलीस्ट आपके पास कॉपी पेन यूजुअली वो लोग देते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हो, ठीक है? I think we are on track. If anybody has any questions, this is my these are my social handles. LinkedIn, Instagram, same Devan Bhalla. Any questions so far? Just wait. Let me stop sharing this. सर Yeah, मुझे क्वेश्चन है। आपकी आवाज बहुत एको हो रही है। हाँ सर, मैं कौशल बात कर रहा हूँ। हेलो, Yeah, आवाज आ रही है सर मेरी? yeah. सर मुझे बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, 2 बार ऐसा हुआ है कि जब इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तो उसका स्क्रीन ऑफ रहता है, तो आई कांटेक्ट कैसे बना के रखे, यही दिक्कत आती है थोड़ी। ठीक है। So your name please? Sir, his name is Kaushal. कौशल। कौशल। तो Kaushal. आप बोल रहे हो वर्चुअल इंटरव्यू के अंदर हो सकता है उनका कैमरा ऑफ हो और आप ना गॉज कर पा रहे हो कि वो क्या कह रहे हैं, या what his or her signals are. यस सर, यस। ठीक है, वो तो आई थिंक वर्चुअल इंटरव्यू का ना ये प्रॉब्लम रहता ही है कि यू कांट लाइक रियली टेल कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक हैक है, आप प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है? ट्राई टू हैव आप आदत डालिए कि आप कैमरा की तरफ देख के बात कर रहे हो, ठीक है? वर्स्ट केस सिनेरियो है दैट यू कैन हैव मे बी समथिंग पेस्टेड एट द मतलब आपके एज अ स्टिकर, ठीक है, जिसको देख के आप बात कर रहे हो, ठीक है? तो आपका ध्यान भी कैमरा की तरफ रहेगा बिकॉज योर लाइन ऑफ साइट विल बी लाइक दैट, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई बंदा नहीं है सामने, बिकॉज ये यूजुअली लोग इसलिए करते हैं टू पुट यू ऑन द स्पॉट, ठीक है? दैट यस, हाउ आर यस। यू गोइंग टू रिएक्ट टू दैट? आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरव्यूअर को कि आप भी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है? बिकॉज इफ यू विल रिक्वेस्ट दे विल ऑब्लाइज, सो ऐसा ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है? सो ट्राई एंड डू दैट, मे बी दे विल oblige you with that request, ठीक है? They यस, don't यस, want to put यस, some यस सर। interviews intentionally turn off their cameras, but उसके लिए मैंने आपको हैक बता दिया। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड। यस, थैंक यू। Okay, any other questions? Sir, I have a question. My name is Sure. Sakshi. सर एज अ फ्रेशर इंटरव्यूअर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्रेशर का क्या मतलब लाइक क्या रोल होना चाहिए और कैसा मतलब लाइक होना चाहिए? सर ये मतलब फ्रेश ही हूँ मैं, और अगर मैं ट्राई कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए तो क्या एक मतलब इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन होगी फ्रॉम अ फ्रेशर? ठीक है, so from a fresher, your name please, I think if you can. सर या साक्षी हियर। Sakshi. So Sakshi, I think that's a very relevant question. पहली बात तो फ्रेशर्स के लिए सी आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है कॉलेज के अंदर? मतलब दे वांट टू सी हु यू आर एज एन इंडिविजुअल और आप टीम में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे,
ठीक है, आइडियली यही चीजें इवैल्यूएट होती हैं आपका Yes, yes. अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एस्पेक्ट पे, ठीक है, वो आप शोकेस कर सकते हो कि आपने कौन से कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स की हैं, ठीक है। आई विल रिपीट, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, ठीक है। उसके बारे में दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि आपने क्या सीखा, उसमें से क्या रिजल्ट्स निकले, ठीक है। दे वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस। फिर हाउ आर यू एज एन इंडिविजुअल, मतलब उसके अंदर फिर आपने कॉलेज टाइम पर क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करा, कोई कोई आपने इनिशिएटिव्स लिए, कोई आपका वेंचर है खुद का, सोशल साइड पे आप कुछ करते हैं, सोशल एज इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल इम्पैक्ट वाले कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं। they want to know that, they want to know you as an individual and how you will contribute to the company, ठीक है। so freshers के लिए ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी नहीं है बिकॉज you don't have a pre context, तो आप अपना इमेज स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं इनके सामने, ठीक है। यूजली अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो, कॉपरेट करना है, तो फिर आप उसके बारे में बात करेंगे, उसमें कुछ भी कहीं पर भी ट्रेजेक्टरी जा सकती है। बट फ्रेशर्स के लिए दे हैव अ, you can navigate the interview as you want and that really Okay, sir. helps, ठीक है। Thank just be you, sir. confident, Thank you, if you are confident आपका 90% इंटरव्यू क्लियर है sir. Okay, sir. Okay, thank you. एनी टाइम, ठीक है। okay, I think there are a lot of questions that we need to Hello. address. Yes, sir. Yeah, hi. I have a question, sir. My name is Dada Saib. Hi. हेलो सर। एक्चुअली क्या है, जनरली हमारा इंटरव्यूज जो कलेक्ट होते हैं तो टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड ऐसे 2 राउंड होते हैं ना। हाँ। तो उसमें जब हम लोग एचआर राउंड में जाते हैं तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दिस कंपनी यू आर चूजिंग, इसी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो उस पे हमारा क्या आंसर, एक्चुअली कंपनी के ओरिएंटेशन में क्या होना चाहिए। ओके सी, ये अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिले ना, आप ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कोई, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अपना इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आप तब क्या बात कर सकते हो कि ये इंडस्ट्री में, इस तरह की इंडस्ट्री में, से फॉर एग्जांपल आपको फार्मा इंडस्ट्री में काम करना है, फार्मा इंडस्ट्री में आपको क्यों काम करना है, वो आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे। I want to work at XYZ company because its vision, mission, and its objective towards the community is something that I align with, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, ठीक है। उसका, उस कंपनी का विजन पढ़िए, उस कंपनी का मिशन पढ़िए, ठीक है। प्लेस योर सेल्फ इन दैट पोजिशन कि मुझे 1 लाख लोगों को इम्पैक्ट करना है, ठीक है। मुझे कोई भी, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, उनका एक एजेंडा रहता है कि मेरे को बिजनेस करना आसान करना है लोगों के लिए, ठीक है। जैसे मैं कंपनीज का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने वहाँ काम किया हुआ है, बट क्यों, मतलब उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या उससे लाइवलीहुड बनेगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। या योर बिलीफ सिस्टम इज सच दैट यू आर अ प्रमोटर ऑफ मेक इन इंडिया, ठीक है। प्रमोटर ऑफ मेक इन इंडिया, नॉट अ प्रमोटर ऑफ बीजेपी, ठीक है। डू नॉट, इन क्वेश्चंस के अंदर डोंट्स ये हैं, you will not showcase your prejudice or bias or inclination towards any political affiliation or community or gender or anything that can land you in big trouble, ठीक है। just mention कि इस कंपनी में मुझे इसलिए काम करना है बिकॉज पहली बात मेरे स्किल्स मैच होते हैं, ये इंडस्ट्री इज समथिंग दैट आई वांट टू मेक माय करियर इन, एंड हाउ यू वांट टू मेक योर करियर इन, मतलब आपका प्री कंडीशन क्या है। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आप हेल्थ केयर में ही काम करो, ठीक है। टेक के, आईटी के स्टूडेंट है तो फिर आप चाहेंगे कि आप आईटी में ही काम करें, ठीक है। उससे आपको क्यों काम करना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस फील्ड। थोड़ा सा मक्खन लगाना है, genuinely, matlab you should feel that the company that you're applying for is the best in its space, and that's why you want to make a career. Otherwise so you are basically lying to yourself and getting a job, ठीक है। तो mention about the industry, the company, how you see yourself in this company and a long term career with this company and making an impact and taking it to the next level, ठीक है। talk about something which is visionary, talk about something which is positive, ठीक है। और क्या चीजें नहीं बोली वो मैंने आपको बता दी है। सर मैं अभी 15 ईयर से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। okay. अभी इंटरव्यू के जाने के बाद उधर
पूछा जाता है कि अभी 15 साल के बाद आप क्यों कंपनी चेंज कर रहे हो बोल के। नहीं, तो उसका आंसर तो आप ये बोल सकते हो ना, दैट यू लुकिंग फॉर एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। आपने हो सकता है कोई कोर्स करे हो, या यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, या हो सकता है इंडस्ट्री चेंज करनी हो और अपने लर्निंग्स वहाँ यूटिलाइज करने हो, तो यू कैन शोकेस कि यू हैव द रिक्विजिट स्किल्स to contribute to the other company in a much better manner. And आप as a stable employee, you are a loyal employee because you've stuck around for 15 years in an organization, right? So you are looking at a long term career with the next company that you're joining. आपके तो केस में कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब you can always showcase that I am somebody who's stable enough to survive all the ups and downs with the company for a much longer period of time as compared to an average employee of the current era. So that's your USP in fact. I hope आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का. Hi sir, Ashna this side. Sorry to interrupt, but can we No, take no. last question now? Only Yeah, last sure. question. Sure, Student Anand only. ji, people won't take it negatively. If they're taking it negatively, you have to showcase and project it in that manner that they take it positively. हाँ, 15 साल के बाद कोई स्विच करता है, एक दो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि why now, but you can always say that I want to, you know, try out new frontiers, take up more exciting projects. So you can always talk like that. Your ability and willingness to learn will never be questioned. Okay. Hello, sir. Hello, sir. Has asked. Hi, sir. Prabhakar here. Hi, Prabhakar. Actually, I have one weird situation once upon a time. When I went for an interview, that time my previous organization, one employee was sacked because of his misbehavior and some unethical approach during the organization. But when I went for an interview, and he was sitting in an interview panel, and so you how to react in that condition, because that is actually a weird condition, because I know that person was not loyal to that previous organization, and actually I was not passed in that interview because of his only, because he moved that interview from technical to very personal. Would you like to have this conversation separately? Yes, we will have definitely. Sure, let's have this conversation separately, because I think that this is more of a charged topic. So I think it might not be beneficial for others to hear something that is stemming from an opinion, right? Let's connect separately for that. Sure, sir. Ashna, please share my contact number with this gentleman. Sure, sir. Yeah. Okay, ठीक है. So can we have like one more question, one or two more questions? I'm sorry. Sir. Sure, sir. I have something lined up at 4, but I can extend a bit. Prashant this side. Yeah. Aditya is asking about. Sorry, we forgot to discuss about negotiation skills. Sorry. Please गुस्सा मत करिए आप, Aditya. So, see, salary negotiation ना, this is a very important topic for interviews. Last round में usually discuss होता है. या तो पहले पूछ लेंगे आपसे एक्सपेक्टेशन और बाद में फिर नेगोशिएशन होता है, ठीक है. See, salary negotiation is a very sensitive topic that comes into the picture. When you apply for a job, please hear me out. आप लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. आप इमेजिन करिए that you're currently at, say for example, 30 lakhs all fixed, ठीक है, and you want to get the next opportunity at say somewhere around 40 to 42, 43, ठीक है. तो you know कि 40% हाइक मुझे चाहिए, ठीक है. अपना आप एक ब्रैकेट बना के रखिए कि अगर 38 तक भी आता है तो यू विल से यस, ठीक है, और आप 42 से बिल्कुल नीचे काम ही नहीं करोगे, ठीक है. सैलरी नेगोशिएशन के अंदर मल्टीपल चीजें देखी जाती हैं. पहली बात तो फिक्स्ड कंपोनेंट, बोनस किसी भी टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है सैलरी का, डिपेंडिंग रोल कौन सा है, ठीक है. फिर होते हैं ईसॉप्स, ठीक है. You need to ensure, please listen to me
very carefully before you jump the gun. You need to ensure कि आपके interests are taken care of, but the company is not robbed, right? आप 30 से 60 नहीं मांग सकते, ठीक है? आपके दिमाग के अंदर एक ब्रैकेट होगा, एक स्टैंडर्ड हाइक होगा. गो ऑन ग्लास डोर, चेक विद योर कम्युनिटी एंड पीपल अराउंड यू कि ठीक है, व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल सैलरी हाइक दैट आई कैन लुक एट. इस कंपनी के अंदर कुछ लोगों से आप कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, या जो पहले एम्प्लॉइज थे उनसे पूछ सकते हैं, या ग्लास डोर पे जाके चेक कर सकते हैं कि अच्छा 50% हाइक तो कंपनी दे देगी इस रोल के लिए. तो आप 30 से 45 पे पहुंच गए, ठीक है? इफ दैट इज एक्सेप्टेबल टू यू देन गुड. इफ दे से कि हम 30% ज्यादा दे ही नहीं सकते या 20% ज्यादा दे ही नहीं सकते, देन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आर द अदर. अगर आपको रोल पसंद है, कंपनी पसंद है, सैलरी के अंदर आपको लग रहा थोड़ा सा कम है, बट क्या किसी और तरीके से कॉम्पनसेट हो सकता है? कैन यू गेट जॉइनिंग बोनस? कैन यू गेट मे बी वेरिएबल आप कम करवा के फिक्स में थोड़ा बढ़वा दो, ठीक है? या हो सकता है आपको डेजिग्नेशन थोड़ी सीनियर मिल जाए, या हो सकता है लोकेशन आपकी पसंद की मिल जाए, या हो सकता है सब कुछ ही मिल जाए और सैलरी थोड़ी सी कम हो फिक्स पे. देन इट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू नीड more money on the table, or you need a better work life balance, or you need other things. So आपको सब चीजें factor in करके you need to accept the negotiated salary amount and the negotiated salary agreement, ठीक है? So negotiation skills के अंदर you have to be very careful that you do not have to be pushy. Have a conversation, बेस इट ऑन फैक्ट्स कि कम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपने जो रिसर्च करा उसके हिसाब से क्या है, ये रोल पे कितना होना चाहिए, ये इतना मेरे को पता है कि इसके कंपेयर पीयर्स के अंदर इतना मिलता है, ठीक है? यू कैन यूटिलाइज दोज फैक्ट्स टू stand your ground, ठीक है, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, ठीक है? स्किल्स आर वेरी सिंपल. हैव अ कॉन्वर्सेशन, डू नॉट गेट इम्पेशेंट. नेगोशिएशन एक बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है? क्योंकि जितनी बड़ी सैलरी होगी उतना ज्यादा खींचतान दोनों साइड से होगी, ठीक है? सो जस्ट इंश्योर दैट इट इज बीन टेकन केयर ऑफ, ठीक है? ठीक है. Aditya, Tejas, and everybody else who had this question, have I answered your question now? Yes, sir. Okay, Thank you. great. I will take one more question. That's from Vrinda. She's been asking questions repeatedly. Sir, what to do if there are many? Uh, Sir, what to do if there are Vrinda? I'm taking a question, by the way. Sir, what to do if there are many interviewers in an interview that is taking place and they're trying to suppress you by their voice modulation or anything? See, Vrinda, all you can try and do is you can just request. If you feel that if somebody is being rude during the interview, just say and try to be polite and courteous that yes, I've heard you. Um, uh, you know, uh, just from that perspective, whenever you're taking question, कुछ लोगों की आदत होती है they try to intimidate others. So you can continue to keep your calm and answer in your voice modulation. आप अपना do not raise your voice, ठीक है? Because that would look as a sign of aggression, ठीक है? Some people do this intentionally to suppress or to dominate or to patronize you, right? That is something that you can always avoid getting into, right? If it is extremely demeaning, please walk out of the interview. Just walk out of that interview. Because अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरह से पेश आ रहे हैं तो जॉब में जाने के बाद क्या करेंगे? And please do not sign up for a toxic workplace even if they are paying you X amount of money, because there's nothing above mental health and well-being. You can't like really perform on the job if you are being intimidated day in and day out. ठीक है? Any other questions, guys? Thank you, हेलो thank सर. you, thank you for the हेलो सर, praise. वन मोर क्वेश्चन. Thank you so much. हेलो सर. मेरा एक क्वेश्चन है, ये ऐसा है कि एट ए टाइम अगर हमने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया है और वहां से अगर हमें तीनों जगह से अगर आप ऑफर है, तो उस टाइम पे हम लोग कौन सी कंपनी चूज करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हमने वो देख के सब चीजें कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं. सी जैसे वो नेगोशिएटेड सैलरी के ऊपर बात हो रही थी अभी सेशन के अंदर ही, आई थिंक आदित्य एंड तेजस हैड पिक दैट अप. if you have multiple offers coming your way, just ensure कि there are some things that are very personal to people. कुछ चाहते हैं कि वो अपने होम सिटी में ही रहे, कुछ चाहते हैं कि उनका रोल का प्रोग्रेशन बड़ी जल्दी हो जाए, so they want like a senior role.
right? Because it's about vanity, it's about their ego also. Ki, yeah, I have been at this level for maybe 2 years, 3 years, 4 years. Now I want to move to the next level, right? So you need to be very mindful कि अच्छा ठीक है ये वाला अभी current scenario है uh, and I'm making this much money. Can I save this much money by not relocating to another city? तो वो ट्रेड ऑफ होता है एक दिमाग के अंदर हमेशा ही रहेगा. तो I stay in Delhi. So for me, the first preference would be Delhi NCR and not Mumbai, right? For because Mumbai का standard of living is higher. हो सकता है मेरी salary उसको match करती हो, but I do not want to because I have an only child. So I don't want to move to Mumbai for personal reasons, right? So I will never get into a conversation about a role which is Mumbai based, right? If it requires some time occasional travel, then that's fine. But permanent relocation is something that I will rule out, right? Not at this stage of my career. Uh, so that's personal to me, right? X amount of money that you make, pura salary, fixed, variable, bonus, and obviously your ESOP pool, everything. All of this is taken into account when you come to a CTC. So this needs to be lucrative enough for you to switch. Second, the role should be pehla the role should be very challenging so that it takes you to the next level. जैसे दीक्षा के साथ जो conversation अभी हो रहा था, she said that I want to be a CHRO. So if she is given a plant side role, she should take it up because she will get into industrial relations. Um, the labor relations, if she wants to get into labor relations, because that's a very powerful role in HR. That's also known as IR. So if somebody gets a grab of IR, they can be the most powerful HR in the industry because you can drive a union, you can mobilize the union. And this is usually very relevant for companies like automotive companies, right? They pay very well to IRs and may not be paying really good to HRBPs. There's a reason because unka major employee chunk is the trade union. It's the people who are working in the plants. So they have a lot of power. Okay, so role should be very challenging. The salary should be lucrative enough for you to consider a switch in the first place, and then your personal factors need to be taken into account. City, uh, and maybe the weather. A lot of people develop a sinus condition if they move to extreme weathers, so they can't sign up for those roles no matter how good they are. My uncle did not. He went to Canada, but then he just could not survive the extreme temperature, so he had to come back. But then he got an equally amazing opportunity in Singapore, so then he moved there in finance. So these are decisions that you need to take your family into account and your career into account before you say yes. Okay. I think do we have any other questions? Prashant, your question is very relevant. Uh, Prashant, do not switch jobs every 3 to 4 months. It's not conducive to your career. There are certain factors because of which you might be subjected to something like this, but uh, I would encourage you to not do that and stick around in a job for at least a year and a half. Okay, so okay, I think if anybody has any questions, please reach out to me directly. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Uh, I believe, sir, the Q&A session can go on and on because it will students continue till really, 8 p.m. if you don't yes, stop. sir, I believe so because they really do have lots of questions, and I totally agree with them because the session which you took were really great, and we are facing the real time situations, and all the examples which you take was real time. So I believe they are really interested, and we'll Thank definitely you. have one more session of yours, sir, on this. Sure, sure. I think we have one tomorrow, but that's on Yes, sir. brand. I can try and take that question here. Ashna, please circulate. People are sending direct messages to me for my links, Okay. LinkedIn or Insta. So if you can share that, I think you already have that with you. You can just Sure, sir, circulate sure. it in, and do share if all the attendees have one more these messages are something that I really like reading. One more session, please, and all of that. So thank you so much, Raghuramji. So I think before we can like I do have some announcements and some thing for the students. So some before that I would request everyone to just put on their camera so we can take a snapshot of everyone. Is that okay?
Sure. We can definitely do that. Yes, I'll I also take off request my glasses. Bhagyashree ma'am also to just switch on her Oh, she's camera so here. we can. Yes, sir. Yes, yes. I'm Yes, sir. listening to you, sir. Hi, ma'am. How are Hello, you? hello. Yes, I'm good, sir. How are you? It All was well. really wonderful session. So I'm Thank happy you so that much. tomorrow we are again going to meet with some new perspective, with some new topic. Yes, definitely. Yes. So I request my team, Prajakta or Priya, can we have a snapshot, please? Let us know, okay? Yes, I'm ready with it. Smile, please, everyone. And take both pages screenshots, huh? There are two Oh, pages I can yes, see. yes. Still on it. Smile, everyone. So I'm clicking one more. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you. Happy Thank to you. see you all Thank students here with the smiling faces. So do join these sessions, all the conclave sessions. It is going to be an amazing era of conclave for next 8 days, and this is going to be like in this mode only for all the 8 days. So do join all the sessions. Everybody is smiling. That's a big win. That's Yeah, a big win for the team. right, sir. Right, sir. Okay. Thank you. Thanks all. Okay, so sir, I would like to officially announce the vote of thanks for you. So it was a privilege to have you for the spectrum that we have for MIT SDU under Conclave 2023. You took out your time for us. That was really good. The techniques and the hacks which you shared for interview preparation and the body language were truly valuable for all our students. Also, the real time examples which you took from our students on the chat, on the audio, or real time itself, that was really helpful for all the working professionals as well as freshers as well. And the final tips which you shared were were really the key takeaways of the session, and Thank that you. was really grateful. Thank you so much for this wonderful Thank you. session, sir. Thank you. Thank you so much. Looking forward to the one that we have aligned for tomorrow, same time. Yes, sir. That is something that is really required. We'll talk about the brand building part for you, for everyone here, because your hiring managers, your recruiters, everybody at the firm that you're going to apply for, and people in the industry take note of your LinkedIn. And obviously, if you are into content creation, your Instagram, GitHub, and other profiles. So that's your proof of concept. So we'll talk about that in greater detail tomorrow. So looking forward to it, and thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.